بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام محمد فیصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امتزاج۔ ناظرین کرام، آج ہم ذرا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کے بعد میرے یہ ویڈیو آپ کو اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ آپ کو ایک سیریز میں ملیں گے۔ اب ایک دو تین چار جتنے بھی بنے، انشاءاللہ ہم اس موضوع کا ایک احاطہ کرنے جا رہے ہیں۔ نام تو سنتے رہتے ہیں، گوادر، گوادر پورٹ، سی پیک، اور اس طرح اس کے معاشی فائدے بڑے ہیں۔ لیکن گوادر کہاں پر واقع ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پیش منظر کیا ہے؟ سی پیک ہے کیا؟ کس طرح معرض وجود میں آیا؟ یہ منصوبہ کب بنا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پر اس کے کیا معاشی، سیاسی، جغرافیائی کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہم اس سے کیا کیا فوائد جو ہیں وہ لے سکتے ہیں؟ اور کل کلام ہمارے ملک کو اس سے کیا کیا جو ہے بینیفٹس اور عوام کو ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کچھ بھگتنا بھی پڑے گا، تب کہیں جا کر یہ پھل ملے گا۔ کیونکہ ایک شعر آپ کی نظر، بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنج گوہر کس کو ملا ہے، جو رتبہ والا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہلے مصیبت کے طلبگار ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنا کام شروع کریں، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کو میرے ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ گوادر جس جگہ کا نام ہے وہ پاکستان کے انتہائی جنوب مغرب میں واقع ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کا انتہائی جنوب مغرب میں گوادر واقع ہے، اور یہ صوبہ بلوچستان کا ساحلی پٹی ہے، اس کا ساحلی علاقہ ہے، اور اس کا جو بنیادی ایریا آتا ہے وہ مکران ہے۔ یاد رکھیے، گوادر کی جو بندرگاہ ہے اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے، آپ خود بھی گوگل کر سکتے ہیں، آپ کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ خود بھی جانکاری لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے لکھا گیا دا ڈیپسٹ پورٹ ان دا ورلڈ، یعنی دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ، کہ جس پر آپ ہزاروں ٹن وزنی 4 لاکھ ٹن، یہ اس کے بارے میں جو اسٹڈی ہے، اس سے بھی زیادہ وزنی جو جہاز ہے وہ آپ کھڑا کر سکتے ہیں۔ 4 ملین، سوری میں نے 4 لاکھ بولا، 40 لاکھ ٹن جو اس کا ڈیڈ ویٹ ہے، DWT، جو بین الاقوامی پیمانہ ہے بحری جہاز کا، آپ اس سے بھی زیادہ پر یہاں اس جگہ پر کھڑا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آئیے جی آگے چلتے ہیں۔ گوادر عمان مسقط کے بالکل سیدھ میں واقع ہے۔ یہ مسقط کے انتہائی ایسٹ میں، انتہائی مشرق میں، بالکل سیدھ میں واقع ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ، دنیا کی سب سے بڑی تجارتی گزرگاہ کی ایک ساحلی پٹی ہے، اور دا ڈیپسٹ پورٹ ان دا ورلڈ ہے، بحیرہ عرب پر واقع ہے، پاکستان کا ساحلی علاقہ ہے۔ اور آئیے ذرا آج ہم اس کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ گوادر کا لفظ وہاں کی جو مقامی زبان بولی جاتی تھی، یہ آج سے ہزاروں سال قبل علاقہ جو دریافت ہوا تھا، اور پہلے اسے وادی کلانچ کہا جاتا تھا، یا اسے وادی دشت کا نام دیا جاتا تھا۔ اور ہزاروں سال قبل وادی سینا میں جب قحط پڑا سیدنا داؤد علیہ السلام کی پیغمبری کے زمانے میں، تو ان کی اولادوں میں سے کچھ لوگ جو تھے ہجرت کر کے اس ایریا میں آ بسے۔ گوادر اصل میں دو الفاظ سے نکلا، ایک ہے جی گواد اور دوسرا در۔ گواد کا مطلب ہوتا ہے کھلی ہوا، اور در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، کھلی ہوا کا دروازہ۔ یہ ساحلی علاقہ تھا، نسیم بری نسیم بحری اسی علاقے سے چلتی تھی، اس لیے اس کو ذرا چونکہ اس سے ٹھنڈی ہوا کچھ زیادہ آتی ہوگی، تو وہاں پر مقامی زبان میں اسے گواد در کا نام دیا گیا، جو ازاں بعد گوادر میں چینج ہو گیا۔ اس کے بعد جناب جب یہ لوگ یہاں پر آباد رہے قحط کے زمانے میں، انہوں نے یہاں پر آ کے اپنی مشکلات کو دور کیا، آبادی بڑھی، تو جب 325 قبل مسیح میں، 325 بیفور کرائسٹ میں، سکندر اعظم نے، الیگزینڈر دی گریٹ نے برِ صغیر پر قبضہ کیا، تو واپسی پر اس کے ایک جنرل ایڈمرل نیرکوس نے اس علاقے کو اتفاقاً دریافت کر لیا، اور اس نے جو قدیم یونانی لٹریچر میں اپنی جو اس کی یادداشتیں محفوظ ہے، اس میں اس شہر کو اس نے گوادر کا نام دیا ہے، اور اس نے یہاں پر 3 شہروں کا، اپنی یادداشتوں میں 3 شہروں کا جو تذکرہ ہے وہ کیا ہے، ایک گوادر، دوسرا یشوکان، اور تیسرا چابہار۔ سکندر اعظم کا یہ جنرل جن شہروں کا تذکرہ کرتے ہیں ان میں سے 2 کو تو بخوبی ہم جانتے ہیں،
एक का नाम ग्वादर और दूसरे का नाम चाबहार। यीशु खान पर तारीख की बहुत सारी गिर पड़ चुकी है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो जरूर रहनुमाई कीजिएगा। उसके बाद जनाब सिकंदर ने अपने एक जर्नैल जिसका नाम सेडुकोस सेडुकोस निकाटर था, उसको यहाँ की हुकूमत जो थी उसको मुंतकिल कर दी, उसको यहाँ का गवर्नर अपना बना दिया। जो 303 कबल मसीह यानी 303 बिफोर क्राइस्ट तक वहाँ यहाँ पर हुकूमत जो है वो करता रहा। फिर उसके बाद 303 बिफोर क्राइस्ट यानी 303 कबल मसीह इसी साल में यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने हमला किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर हमला हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। जब उसने इस इलाके पर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया तो अजामाबाद उसने अपनी हुकूमत जो थी वो कायम कर दी। ये चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा अभी कुछ ही ऐसा हुआ था कि 202 कबल मसीह में यहाँ पर ईरान के बादशाहों ने हमला कर दिया और हमला करके चंद्रगुप्त मौर्य से ये इलाका छीन लिया, क्योंकि ये इलाका बंदरगाह थी और ये इलाका शुरू से ही तिजारती सरगर्मियों का मरकज था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से ये छीन लिया, जो कि 711 ईस्वी यानी 913 साल तक उनके कब्जे में रहा। 711 ईस्वी में जब सरांदीप से चलने वाले जहाज, सरांदीप जिसका नाम आप श्रीलंका के नाम से जिसे जानते हैं, चूंकि अरबों की तिजारत यहाँ पर होती थी, चूंकि अरबों की तिजारत यहाँ पर होती थी, ये अरबों की तिजारती गुजरगाह थी, अरबों का एक तिजारती रूट था। इसी तिजारती रूट पर अरबों ने जो अपना सफर किया करते थे, उनके तिजारत होती थी। तो यहाँ पर सरांदीप से जाने वाले मुसलमानों का काफिला जा रहा था। तो राजा दाहर दीबल का जो इलाका है मकरान से आगे सिंध में, तो उसके बहरी कज़ाकों ने वो जब जहाज लूटा तो उसकी फियाद पर मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में यहाँ पर आए। जब मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया, तो तब से ये इलाका फिर मुसलमानों के कब्जे में चला गया, जो बाद 1740 को खान ऑफ कल्लात के कब्जे में आ गया। खान ऑफ कल्लात की ये जो अमलदारी थी ये इस इलाके में कायम रही। बाद गजकी कबाइल और बलदीव कबाइल आपस में बलदीव कबाइल आपस में लड़ते रहे और फिर ये क्या हुआ, 1775 को ये इलाका यानी 1775 को ये इलाका मस्कत के हुक्मरानों ने मुस्तार ले लिया, यानी खरीदा नहीं, मस्कत के हुक्मरानों ने खान ऑफ कल्लात से, चूंकि बरसीर के रहने वाले लोग दरिया दिल तो बड़े होते हैं ना, नवाज देते हैं, जब नवाजने पे आते हैं आगे किसी ने कुछ 4 लफ्ज तारीफ के बोले होंगे, आंदा में कहा चलो कोई बात नहीं, करो तिजारत। लामहदूद वक्त तक के लिए तिजारती मकासद के लिए मस्कत के हुक्मरान को 1775 में खान ऑफ कल्लात ने ये इलाका जो था ये दान कर दिया, उन्हें अलाट कर दिया, दे दिया। उसके बाद जनाब इस इलाके में जो सबसे बड़ी तिजारत रही वो हाथी दान, गरम मसाला और ऊनी लिबास के साथ साथ अफ्रीकी गुलामों की सबसे बड़ी तिजारती मंडी थी, ये यहाँ पर कायम रही। उसके बाद जनाब 1783 में सब्ज सुल्तान की अपने भाई से झगड़ा हो गया। भाई से झगड़ा होने के बाद उसने खान ऑफ कल्लात से इस इलाके में आकर बसने की, रहने की इजाजत मांगी। खान साहब ने उन्हें इजाजत दे दी। उसका नतीजा ये निकला कि वो तकरीबन 1797 तक यहाँ पर मुकीम रहे और इस इलाके की जितनी भी तिजारती आमदन थी, जो महसूलात यानी टैक्सेशन जो भी इकट्ठी होती, वो से इस्तेमाल करते रहे और फिर वो यहाँ से वापस चले गए। जब यहाँ से वापस चले गए तो फिर क्या हुआ, फिर 1804 में जी सुल्तान के बाद बल्दियों का, बलीदेवियों का यहाँ पर कब्जा हो गया। 2 कबाइल थे, जिक्री फिरके से इनका तल्लक था, एक बलीदेव कबाइल थे और दूसरे गजकी कबाइल थे, ये आपस में झगड़ते रहते थे, उनका कब्जा हो गया। जब उनका कब्जा हुआ तो मस्कत ने फिर फौज अपनी वहां से भेजी और दोबारा से गजकी और बलदेव कबाइल से ये इलाका दोबारा से अपने पास ले लिया। 1831 में बरतानवी जरा कबाइल की, जो बरतानवी यहाँ पर काबिज थे अंग्रेज, उनकी जरा इस इलाके की तरफ तवज्जो हो गई और उसके नतीजे में चूंकि पठानों से ये इलाका या खानों से ये इलाका लेना आसान काम नहीं था, बहरकैफ 1861 को बरतानिया का कब्जा इस जगह पर मुकम्मल हो गया। मेजर गोल्डस्मिथ की क़यादत में बरतानिया ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और इंडिया स्टीम नेविगेशन के जो जहाज थे यहाँ पर आके वो लंगर अंदाज होने लगे और ये तिजारती सिलसिला चल निकला। अंग्रेजों ने फिर इस इलाके की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी, जिसके नतीजे में
1863 में 1863 में यहाँ पर पहला तार घर कायम हुआ। 1863 में पहला तारघर यहाँ पर बना, जो कि 2 साल बाद एक दूसरा तारघर ग्वादर के बाद उन्होंने पिसनी में कायम कर दिया। 1894 को दुनिया का जदीद तरीन जो डाक का निजाम उस वक्त का था, उसका पहला पोस्ट ऑफिस 1864 को ग्वादर में बना, क्योंकि जाहिर है जी ग्वादर में ईस्ट इंडिया कंपनी तजारत करती थी, जहाज आते जाते थे, बहुत सारे लोग मुकीम होते थे, घरों में राब्ते होते थे, तो उन्होंने डाक का निजाम यहाँ पर भी कायम कर दिया। 1894 को यहाँ पर पहला पोस्ट ऑफिस बना, जो कि 1903 में पिसनी में भी एक और पोस्ट ऑफिस कायम कर दिया गया। और 1904 को, उसके एक साल बाद 1904 को उमाड़ा में तीसरा पोस्ट ऑफिस कायम करके यहाँ पर डाक के निजाम को पूरा बेहतर बना दिया गया, ताकि ये तिजारती सिलसिला जो है ये चलता रहे, आता जाता रहे। 1947 को जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो ये इलाका जो था खान ऑफ कल्लात को वापस मिल गया, कल्लात में शामिल हो गया। और लेकिन अभी इसका जो स्टेटस था ना वो यही था कि खान साहब ने ये चूंकि दान किया हुआ है, इलाका बख्शीश किया हुआ, किसको, सल्तनत ओमान को, तो जाहिर है जो सरदार चीज दे दें वो वापस नहीं लिया करते। तो ये जो था ये एरिया, जिस तरह बैरूनी किसी जगह पर किसी हुकूमतों के अपने को असासे होते हैं, तो ये बतौर बैरूनी असासा गवर्नमेंट ऑफ अमान का, स्टेट ऑफ अमान का ये बैरूनी असासा जो था उसके सुल्तान का, यहाँ पर ये ग्वादर कायम रहा, इसका स्टेटस कायम रहा। 1955 में इससे जनाब मकरान को जिला बना दिया गया और ग्वादर को एक तहसील का दर्जा दे दिया गया। चूंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट रेट थी, जिस तरह आजकल हमारे असासे जो कि हमें मुंजमद हुआ है बरतानिया में 899 अरब डॉलर का जो हमें जुर्माना हुआ है, उसके नतीजे में वहाँ पर मुंजमद है। इसी तरह ये भी जो बैरूनी असासा था इसका था स्टेट ऑफ अमान का। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, 1954 में, याद रखें 1954 में इसका पहला सर्वे हुआ कि जो कि यूएस से करवाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 1958 में मस्कत से 10 मिलियन डॉलर के इवज, यानी 1958 में पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ अमान को, मस्कत को 10 मिलियन डॉलर अदा किए इस बात के कि अमान हमें दे दें, और पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह इलाका अमान से खरीद लिया। बलोचिस्तान का बुनियादी हिस्सा नहीं है, याद रखिए, इस बात को ज़हन में रखिए। तारीख के औराक बताते हैं, तारीख बेरहम होती है, तारीख के औराक बताते हैं कि ग्वादर बलोचिस्तान का हिस्सा नहीं है, ग्वादर डायरेक्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे अमान से खरीदा है। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं, क्योंकि ये 1958 में खरीदा गया, जबकि उससे 11 साल पहले पाकिस्तान बन गया था, और 11 साल बलूचिस्तान जो है वो सूबा कायम रहा और ग्वादर इसका हिस्सा नहीं था। बाद में ये डायरेक्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हिस्से में आया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे जम कर दिया। किसके साथ? मकरान के साथ। मकरान को अजाबाद, उसके बाद ये काम चलता रहा। अजाबाद जी 1972 को जब ये 1 यूनिट का सिलसिला खत्म हुआ तो मकरान को डिवीजन का दर्जा दे दिया गया, और इसके 3 अजला बना दिए गए, तुर्बत, पंजगुर और ग्वादर। ये मकरान डिवीजन था और इसके 3 जैली अजला थे। डायरेक्ट डिवीजन खुद भी तो जिला होता है, मकरान डिवीजन था और इसके 3 जैली अजला थे, तुर्बत, पंजगुर और ग्वादर। उसके बाद से ये सिलसिला आगे चलता रहा। लो जनाब, इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन मेरे इस चैनल को देखते रहिएगा। ये पहला पार्ट था जो आपकी खिदमत में पेश किया, ये था ग्वादर का पस मंजर, और इस पार्ट में आपको बताना था कि ग्वादर की तारीख और हिस्ट्री क्या है, और ये किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के को अल्लाह ताला ने ये इलाका आवाज लगाकर कैसे इसके मुकद्दर में कर दिया कि इस पे डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है ना हक है। कोई सूबा, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध या केपी के कोई भी सूबा जो है इस पर अपना दावा नहीं कर सकता कि ये इलाका मेरा हिस्सा था। अच्छा जी, इसके बाद इंशाल्लाह ताला आगे, ये पार्ट 1 था, आगे पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कस करेंगे कि सीपैक का मंसूबा कब से बना, कैसे कैसे सर्वे हुआ, कैसे कैसे ये रींगता रहा, किन किन मजबूरियों के बाद हम इस मंसूबे पर काम ना कर सके। खुश रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए।
مسکراتے رہیے، پاگل دنیا کو زیادہ سنجیدگی سے مت لیجیے، اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔